Now this is our fourth and the last method which we are going to learn now is a NUT method of valuing the goodwill. Now what is NUT? See, before starting with a method, we need to know that हमें NUT का मतलब क्या होता है. So NUT means a fixed sum of the money which is paid or received annually. एक फिक्स मनी जो हम या तो पे करेंगे या तो रिसीव करने वाले हैं पूरे साल भर में. So if you want to write it down somewhere, just write it down that annuity is a fixed sum of the money paid or received annually. Now over here we consider the time value of a money. हम क्या consider यहाँ पर करते हैं? We consider the time value of our money. Now what is the time value of our money? Money का worth, आज मेरे पैसे का worth क्या है? So आज मेरे पैसे का वर्थ ना ज्यादा होगा when I compare with my future. अब तुम लोग बोलोगे कि मैम कैसे, ये आप ये कैसे बोल सकते हो कि आज जो पैसा है उसका वर्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्यूचर मनी. तुम लोग मुझे ये बताओ, previously you know in the olden days you used to get 25 पैसे में भी one chocolate. When 25 paisa was going on, 50 paise mein bhi you used to get one chocolate. 1 rupee mein sometimes you used to get 4 chocolates, sometimes you used to get 2 chocolates. अब तुम लोग मुझे ये बताओ, अब क्या कोई चॉकलेट 25 पैसा या 1 रुपी 50 पैसा में मिल रहा है? नहीं. मतलब तब वो पैसे की क्या थी? वैल्यू थी. अब वही अगर मुझे से फॉर एग्जांपल तब मेंटोस अगर आपको याद होगा तो मेंटोस 50 पैसे में भी मिलता था. हाँ, तो तब मुझे 1 रुपी में 2 मेंटोस मिलती थी. Right now, if I go to a shopkeeper and buy 1 Mentos, तो मुझे 1 रुपी देना पड़ेगा. तो अब अभी आपको पता चला कि जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है ना मनी का, उसका वर्थ ज्यादा है. यही अगर अभी यही मेंटोस अगर मैं नेक्स्ट आफ्टर 5 years खरीदने जाऊंगी तो वो 2 रुपीज का हो जाएगा. तो जो मनी की जो वर्थ है ना, वर्थ अभी देखो, पहले मुझे जहां पर 2 आइटम्स मिल रही थी, अब मुझे वहां पर एक ही आइटम मिल रही है उतने ही पैसे में. अभी मुझे 1 रुपी में 1 चॉकलेट मिल रही थी, पर पहले ही मुझे 1 रुपी में 2 चॉकलेट मिल रही थी. तो वो टाइम पर जो मेरा वर्थ था दैट वाज मोर देन द फ्यूचर. So that is why over here what we consider the present value, or I can say the real value. Present value बोलो, real value बोलो, या तो purchasing power बोलो, it is one and the same. So you consider over here the present value, or you can say the time value of a money. ठीक है, to calculate the goodwill. अब तक हमने जितनी भी मेथड्स की ना, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती थी, पर ये जो एन्यूटी मेथड है ना, वो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करती है. सो हियर द पेमेंट ऑफ गुडविल इज मेड इमीडिएटली फॉर द सुपर प्रॉफिट टू बी अर्न्ड इन द फ्यूचर. कि फ्यूचर में मुझे कितना सुपर प्रॉफिट होगा. So in order to make it consistent, present value of the super profit is calculated to decide the goodwill. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? Present value find out करनी पड़ेगी. So for deciding the present value of your annuity, ठीक है, तो इसके लिए ना एक annuity table होता है, annuity table value, जो आपको लेना होता है कि कितने numbers of years are taken, that you have to take depending upon that number of the years. So what it takes the annuity value, and that then it is known as a annuity method of goodwill. Okay, so see, for deciding the present value, the relevant annuity table value with reference to the number of years is taken, and since it is an annuity value, it is known as annuity method of valuing the goodwill. So what is the disadvantage of all the previous method? That they do not consider the time value of a money, but here the time value of a money is considered. तो टाइम के साथ साथ हम क्या कंसीडर करते हैं? टाइम के साथ साथ हम हमारे मनी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, with a time our value of a money get decreases. Say for example, today you went in the shop and you got 100 rupees में 2 ice cream. ठीक है, you went in the shop and you bought 100 rupees में 2 ice cream right now at a present. अब यही 100 rupees का आप 6 months के बाद गए. ठीक है, यू वेंट इन द सेम शॉप, सेम मार्केट एंड यू बॉट अ सेम फ्लेवर, बट अभी आपको ना, अभी 2 आइसक्रीम्स का आपको 150 रुपीज पे करना पड़ा. तो देखो, सेम क्वालिटी, सेम फ्लेवर, सेम शॉपकीपर, बट नाउ आफ्टर द 6 months वो ही सेम चीज का कितना पैसा लगा? 150 रुपीज हो गए.
दैट इज दैट 75 रुपीज की एक आइसक्रीम हो गई। तो समझ में आया हाउ दिस, इसके वजह से टाइम के साथ साथ अपनी जो मनी की वैल्यू होती है ना, इट गेट डिक्रीजेस। जो एट प्रेजेंट में टू आइसक्रीम्स कॉस्ट ₹100, अब वो ही फ्यूचर में 150 में मुझे 2 मिलेगी। Why this is because of the inflation factor. Just because of the inflation we have a rises in the prices. तो जो भी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी गेट डिक्रीजेस। तो पहले जो मुझे दो ही चीज, पहले मुझे 100 में 2 मिलती थी, अब मुझे उसका 150 में 2 मिल रही है। समझ में आया? सो हाउ टू कैलकुलेट दिस एन्युटी? So according to this method, goodwill is equal to the present value of your future returns. के future में returns मिलने वाली जो है आपको, उसकी present value क्या है, आज उसकी value क्या है। So the first step is you have to find out first the super profit of the business. We have already learned about the super profit method. तो सबसे पहले आप super profit find out करोगे कि क्या आपका super profit कितना है। फिर सेकेंडली आप क्या करोगे, यू विल असर्टेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर रुपी, के ₹1 की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, थ्रू द एन्यूटी टेबल। अब आपको एन्यूटी टेबल क्वेश्चन में दिया गया होगा। फॉर दिस यू डोंट हैव टू राइट नाउ, आपको वो सिलेबस में नहीं है टू कैलकुलेट द टेबल। ओके, लास्टली मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट रुपी। तो फर्स्ट स्टेप इनटू सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू यू विल बी गेटिंग द गुडविल। तो गुडविल कैसे बनेगी, इधर सुपर प्रॉफिट इनटू रेफरेंस टू दैट एन्युटी टेबल। डोंट वरी, वी विल डू द सम ऑन इट, सो इट विल गेट मोर क्लियर। बट सिर्फ इतना याद रखना कि दिस कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ अ मनी।